Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in the English class. I'm sure you all are doing good, you all are doing well, you all are happy, healthy and safe in your homes, taking good care of yourself, following all the safety precautions and listening to your parents. Stay happy children, stay safe, stay happy, stay healthy and stay blessed always. This is our English class and we are doing lesson number 6. We are doing lesson number 6 of our main course book, which is Wordsworth English Reader. So we are doing lesson number 6, which is NEHAS, Neha's BIRTHDAY, birthday, invitation. Neha's birthday invitation. ये when we put this kind of comma, जैसे जब हम यहाँ पे कॉमा लगा करके ऐसे एस लिखते हैं, दिस इज नोन एज अपॉस्ट्रोफे. ठीक है, इसको कहते हैं जब ऐसे कॉमा लगा के एस लिखते हैं, दिस मीन्स अपॉस्ट्रोफे एस. एंड इस कॉमा का मतलब होता है का या की. नेहाज बर्थडे इन्विटेशन मीन्स नेहा का बर्थडे इन्विटेशन. नेहाज बुक मतलब नेहा की बुक है. ठीक है, सो दिस मीन्स का या की. सो दिस लेसन इज अबाउट नेहाज बर्थडे इन्विटेशन. ओके, नाउ इन द प्रीवियस क्लास we have seen that Neha has written an invitation to her friend Avni. ठीक है, नेहा ने अपनी फ्रेंड अवनी को एक बर्थडे का इनविटेशन भेजा है. बट दैट इनविटेशन इज वेरी कंफ्यूजिंग. वो अवनी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इनविटेशन क्या है, उसमें एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज सपोज टू बी डन, उसमें क्या करना है, क्या लिखा है, ये अवनी को बहुत क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है. वाई? बिकॉज दैट invitation is not written in a proper manner. Neha has sent Avni the following message. You can see the small page, a small note on page number 53. Dear Avni, my birthday is on 25th July. Please come dressed as a vegetable fairy. There are many prizes and lots of games. My mummy is baking a big cake and making some yummy snacks. Papa has invited a clown as well. We will have fun together. Do not miss it. Be there at 5 p.m. Love, Neha. It is like a one big sentence. किधर से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है, कुछ इट इज नॉट एट ऑल क्लियर. सो अवनी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज. अवनी को ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा है. वाई? बिकॉज इट इज नॉट रिटन इन अ प्रॉपर मैनर. जैसे हम लिखना चाहिए, इट इज नॉट रिटन. So Avni cannot understand the message. Do you? अवनी को तो समझ में नहीं आ रहा है. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? It certainly is very confusing, isn't it? ये definitely बहुत confusing है. Now you can see Avni, she is sitting here and she is just wondering after reading the message कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें. So it is very confusing. Now let us see why the message is confusing. What is wrong with the message? Oh, I know what is wrong. Neha has forgotten the punctuations. अभी अब समझ में आ रहा है. Now Avni is thinking कि अब समझ में आया कि इस मैसेज में क्या गलत है. What is the mistake? What is wrong with this message? Neha has forgotten the punctuation marks. नेहा जो है वो पंक्चुएशन मार्क लगाना ही भूल गई है. पंक्चुएशन मार्क्स, तो पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है जहां हम रुकते हैं. punctuation marks, like we put comma in between, we put
full stop at the end of the sentence, we put question mark. So these punctuation marks show कि हमें कहाँ पे sentence खत्म हो रहा है. If in between the sentence we have to pause somewhere, we put a comma. जैसे हम कहते हैं ना कि I like to eat apple, mango, banana and lychee. अभी आप ऐसे तो नहीं बोलते हो कि I like to eat apple, mango, banana, lychee. No, we do not say like that. We say, जैसे अगर हमें like here there are names of different fruits. I like to eat apple, comma, mango, comma, banana and L-I-T-C-H-I, lychee. Okay? I like to eat apple, mango, banana and lychee. I also love watermelon. Okay? Now these are two sentences. In first sentence, we have written names of different fruits. ठीक है, हमने अलग अलग फ्रूट्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे. तो बीच में we have put a comma in between. Okay, so I like to eat apple, mango, banana and lychee. This means that we have to give a very small pause. जहाँ पे comma लगा है वहां पे मतलब बहुत हमें छोटा सा pause देना है. मतलब लगातार कंटिन्यूअस हमें नहीं पढ़ना है कि आई लाइक टू ईट एप्पल, मैंगो, बनाना एंड लीची. ठीक है, तो दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स. जैसे जहां कॉमा होता है वी गिव अ वेरी स्मॉल पॉज, फुल स्टॉप, थोड़ा सा उससे लॉन्ग पॉज देते हैं. दैट मीन्स विच मीन्स द सेंटेंस इज ओवर. आई लाइक टू ईट एप्पल, मैंगो, बनाना एंड लीची. आई ऑल्सो लव वाटरमेलन. तो पंक्चुएशन मार्क्स का मतलब होता है कि कहां पे हमें सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वेयर वी हैव टू पॉज, कहां पे हमें खत्म करना है, एंड करना है. ठीक है, शी हैज नॉट इवन यूज कैपिटल लेटर्स. वी हैव लर्न दैट वी ऑलवेज स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. द नेम ऑफ एनी पर्सन इज ऑलवेज स्टार्टेड विद अ कैपिटल लेटर. नेहा ने वो भी नहीं लिखा है. She has not started her name or Avni's name with capital letter. She has not started the sentence with a capital letter. She has not used punctuation mark anywhere. कहीं पे भी comma, full stop कुछ भी नहीं उसने यूज किया है. So that is the mistake with a message. These are the mistakes with a message. उसके मैसेज में ये सारी गलतियां हैं कि उसने कहीं पे punctuation mark यूज ही नहीं किया है. ठीक है, she has forgotten to begin her sentences with a capital letter and end them with a full stop. वो अपने sentences को capital letter से start करना भूल गई, अपने sentences को के end में full stop लगाना भूल गई. ठीक है ना, उसने name जो लिखा वो भी capital letter से नहीं start किया. So these are the mistakes in her message and that is why it is very confusing for Avni. इसीलिए अवनी को ये समझ में नहीं आया. She could not understand the message because it was not written in a proper manner. Now, what should the invitation look like? Invitation उसका कैसा दिखना चाहिए? That means if it is written correctly, अगर proper manner में बिल्कुल लिखा हुआ है तो उसका invitation कैसा दिखना चाहिए? How she should write? Now we will see. Dear Avni. First word, the first letter should be capital. Then name of any person should be written with capital letter. So, dear Avni, comma, my birthday में the B will be small, not capital. My birthday is on 25th July. Now, Neha has not written July also with capital letter. July is the name of a month
जुलाई एक मंथ का नाम है, तो ये जुलाई का जे कैपिटल होना चाहिए. नेहा हैज नॉट यूज कैपिटल लेटर. शी हैज रिटन इवन जुलाई विथ स्मॉल लेटर. सो माई बर्थडे इज ऑन 25th July. Please come dressed, D-R-E-S-S-E-D, dressed as a vegetable, vegetable, F-A-I-R-Y, fairy. Please come dressed as a vegetable fairy. There are many prizes and lots of games. My mummy is baking a big cake and making some yummy snacks. Papa has invited a clown as well. We will have fun together. Do not miss it. Be there at 5 p.m. Love, Neha. Now this is the proper invitation. जैसे लिखा जाना चाहिए, the way it should be written. Dear Avni, D is the first word, so D is capital. My birthday is on 25th July. The sentence starts from my. Sentence कहाँ से start हो रहा है? My से. So M is capital. My birthday is on 25th July. मेरी बर्थडे 25th जुलाई को है. ठीक है. जुलाई इज द नेम ऑफ अ मंथ, सो J इज कैपिटल. प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी. मतलब ड्रेस्ड का मतलब होता है तैयार होकर के. आई एम ड्रेस्ड मतलब मैं तैयार हो गई हूँ. ठीक है. आई एम ऑल ड्रेस्ड अप मतलब मैं पूरी तरह तैयार हूँ. ठीक है. तो शी सेज, नेहा सेज, प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी. फेरी जानते होंगे सब बच्चे. फेरी जिसको कहते हैं ना, परी को बोलते हैं. परी जिसको हाथ में एक मैजिक वैंड होती है, एक मैजिक स्टिक जैसी रहती है, एंड व्हेन शी डज लाइक दिस, स्टिक घुमाया एंड एवरीथिंग जैसा बोला बिल्कुल वैसा हो गया. तो ऑफ कोर्स इट इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर. सो शी सेज कि प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी. मतलब तुम एक वेजिटेबल फेरी की तरह ड्रेसअप करके आना. जैसे आजकल बहुत बार बच्चों की पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, तो पीपल डिसाइड अ थीम कि एक हम थीम के अकॉर्डिंग करेंगे. थीम मतलब फिर सारे लोग जो है, सारे बच्चे उसी के अकॉर्डिंग तैयार होकर के जाते हैं. नॉट ओनली चिल्ड्रन, बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में भी थीम होती है. में भी कोई कलर चूज कर लिया या कुछ कैरेक्टर चूज कर लिए. फिल्मी कैरेक्टर्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स हैं, तो जिसकी मर्जी जैसे भी बन के जाओ. तो शी सेज कि प्लीज कम ड्रेस्ड एज अ वेजिटेबल फेरी. तुम एक वेजिटेबल फेरी बन के आना. अभी वेजिटेबल फेरी का मतलब है कि वो फेरी बनने के लिए व्हाट ऑल वेजिटेबल्स कैन शी यूज. अपना इमेजिनेशन है कितने तरह की वेजिटेबल्स यूज करके
शी कैन ड्रेस लाइक अ फेरी, कैसे वो अपने ड्रेस पे कहाँ कहाँ वेजिटेबल यूज कर सकती है, वेजिटेबल से कैसे ज्वेलरी अपने ऑर्नामेंट्स वगैरह बना सकती है। तो इट इज उसका इमेजिनेशन है कि वो कैसे बनाती है। तो वो कह रही है कि तुम वेजिटेबल फेरी की तरह ड्रेसअप करके आना। देयर आर मेनी प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ गेम। मेनी मतलब भी बहुत सारे एंड लॉट्स ऑफ मतलब भी बहुत सारे। तो कह रही कि बहुत सारे प्राइजेस हैं और बहुत सारे गेम्स हैं। माई मम्मी इज बेकिंग अ बिग केक एंड मेकिंग सम यमी स्नैक्स। बेकिंग मैंने बताया था कि बेकिंग इज अ काइंड ऑफ कुकिंग ओनली। बेकिंग एक तरह का कुकिंग का तरीका है जिसमें कि हम डायरेक्ट गैस पे नहीं रखते किसी भी चीज को। जैसे हम गैस पे रख के कुकिंग करते हैं तो बेकिंग में हम गैस पे नहीं रखते हैं। ओके, बेकिंग में वी कीप इट इन द अवन। जैसे अवन है या कुछ ड्राई उसमें रख करके हम कुक करते हैं। अवन है, माइक्रोवेव है, उसमें कुक करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जो हीट होती है वो उसमें लगती है। ठीक है। सो माई मम्मी इज बेकिंग अ बिग केक एंड मेकिंग सम यमी स्नैक्स। मेरी मम्मी एक बड़ा सा केक बेक कर रही है एंड शी इज मेकिंग सम यमी स्नैक्स। वो कुछ यमी मीन्स वेरी टेस्टी, डिलिशियस। जैसे बर्थडे या घर में कोई पार्टी होती है तो मम्मी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है ना। तो वो कह रही है कि मेरी मम्मी बहुत बड़ा सा एक केक बना रही है और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना रही है। ठीक है। स्नैक्स होते हैं जैसे द सर्टेन थिंग्स विच वी ईट इन बिटवीन द मील्स। जैसे खाना खा लिया दोपहर में, शाम रात को भी खाना खाना है, शाम को थोड़ी भूख लग रही है तो चलो कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। कुछ नमकीन खा लिया, कुछ बिस्किट खा लिए, या मम्मी ने कुछ कटलेट बना दिया, कुछ पकौड़े बना दिए, मम्मी ने कुछ बना दिया तो वो खा लिया। तो जैसे घर में कोई पार्टी होती है, बर्थडे होती है तो मम्मी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाती है ना। जैसे लाइक चाउमीन है, बर्गर है, यू कैन से पिज्जा, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, दीज आर ऑल स्नैक्स। ये प्रॉपर मील नहीं है, दीज आर स्नैक्स। तो शी सेज कि मेरी मम्मी एक बड़ा सा केक बना रही है और वो कुछ बहुत टेस्टी डिलीशियस स्नैक्स बना रही है। ठीक है। देन शी सेज पापा हैज इनवाइटेड अ क्लाउन एज वेल। क्लाउन बोलते हैं जोकर को। तो वो कह रही है कि पापा ने एक जोकर को भी बुलाया है। वी विल हैव फन टुगेदर। हम लोग खूब मस्ती करेंगे और डू नॉट मिस इट। इसको मिस नहीं करना। बी देयर एट 5 PM। शाम को ठीक 5 बजे वहां पहुंच जाना। घर पे मतलब वहां मतलब जहां पे नेहा ने उसको इनवाइट किया अपने घर पे, शाम को 5 बजे वहां पे आ जाना। ठीक है। लव नेहा। लव इट्स अ वे ऑफ, जैसे उसको बता एक लेटर एंड करने का तरीका है। नाउ दिस इन्विटेशन इज फ्रॉम नेहा साइड। नाउ चिल्ड्रन यू रीड दिस लाउडली फॉर अ मिनट। सारे बच्चे ये जो मैंने इन्विटेशन लिखा है इसको लाउडली रीड करो। रीड इट लाउडली। मैं साइड में हो जा रही हूं। I hope children you all have read this. Okay. Now you can make out that what is the difference between the message which was previously written by Neha and in this message. अभी ये पढ़ने के बाद ये मैसेज भी पढ़ा और इससे पहले जो नेहा ने मैसेज लिखा था वो भी पढ़ा। ये दोनों मैसेज पढ़ने के बाद यू कैन वेरी इजीली मेक आउट कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो नेहा ने मैसेज लिखा था वो कैसे लिखा था, उसमें क्या क्या मिस्टेक्स थी, और ये मैसेज जो लिखा है ये करेक्ट है, कैसे मैसेज लिखा जाना चाहिए। ओके। सो हियर ऑल द सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। सो हर एक सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप इज देयर। ओके। सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ writing it. Now it is written properly. So now Avni has understood the message कि ये नेहा की बर्थडे का इनविटेशन है, कितने बजे उसको पहुंचना है, क्या कैसे ड्रेसअप करके जाना है, ठीक है, पार्टी में क्या क्या होगा। Now the next thing is what is नेहा's एड्रेस। अभी वो ड्रेसअप करके कहाँ पहुंचेगी। तो now let us see where is नेहा's house। नेहा का एड्रेस क्या है। In this message, my birthday is on 25th July. Please come dressed. Dressed मैंने बताया तैयार होकर के as a vegetable fairy
देयर आर मेनी प्राइजेस एंड लॉट्स ऑफ गेम्स। लॉट्स ऑफ का भी मतलब होता है बहुत सारे प्राइजेस हैं और बहुत सारे गेम्स हैं। माई मम्मी इज बेकिंग अ बिग केक एंड मेकिंग सम यमी स्नैक्स। यमी का मतलब होता है वेरी टेस्टी स्नैक्स। पापा हैज इन्वाइटेड अ क्लाउन एज वेल। पापा ने एक क्लाउन को भी इनवाइट किया है। ठीक है, वी विल हैव फन टुगेदर, डू नॉट मिस इट, बी देयर एट 5 PM। हम लोग दोनों मिलकर के खूब मजे करेंगे और बाकी भी जो फ्रेंड्स आएंगे सबके साथ हम लोग मजे करेंगे। तो मिस नहीं करना, जरूर से आना एंड बी देयर एट 5 PM, मतलब 5 बजे तक वहां पे आ जाना। ओके, सो दिस इज द इन्विटेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज नेहाज एड्रेस। अगर किसी भी जगह का, अगर आपको वो जगह नहीं मालूम है, इफ द एड्रेस इज गिवन देन यू कैन इजीली रीच। अगर आपको कहीं जाना है, किसी के घर जाना है, किसी शॉप पे जाना है, किसी भी जगह जाना है, अगर उसका एड्रेस नहीं मालूम है कि जाना कहाँ है, तो हाउ विल यू रीच? तो फिर खोजते रह जाएंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। बट इफ द एड्रेस इज गिवन देन वी कैन रीच वेरी इजीली। हम किसी अननोन प्लेस पे भी बहुत इजीली हम पहुंच सकते हैं अगर हमें एड्रेस मालूम है तो। ठीक है, सो नेहा हैज गिवन हर एड्रेस टू अवनी। नाउ लेट अस सी व्हाट इज हर एड्रेस। उसका एड्रेस क्या है? दिस यू कैन से इज एन एनवलप। एनवलप को हिंदी में लिफाफा बोलते हैं। ठीक है, लिफाफा जिसमें हम लेटर वगैरह डाल के पोस्ट करते हैं। लेटर है, कार्ड है। नाउ व्हाट इज नेहाज एड्रेस? Neha's name is Neha Jain. Neha's name is Neha Jain. Neha Jain. Okay. Neha Jain. Then Surya Towers, SURYA TOWERS, Surya Towers, house number 17, MG Road, MEERUT, Meerut 250001 UP. Now this is Neha's complete address. MG Road हमने previous lesson में भी पढ़ा था. Also the vegetable shop was in the corner of MG Road. Okay. Now Neha's address is Neha Jain, Surya Towers. Surya Towers maybe is the name of the building in which she lives. जैसे जिस बिल्डिंग में आजकल तो फ्लैट सिस्टम होते हैं, एक के ऊपर एक बहुत सारे घर होते हैं, तो जिस बिल्डिंग में नेहा रहती है उसका मे बी नाम है सूर्या टावर्स. ठीक है, पूरी बिल्डिंग का नाम. ठीक है, टावर का मतलब होता है बहुत ऊंची सी बिल्डिंग. ठीक है, तो नेहा जिस बिल्डिंग में रहती है उसका नाम है सूर्या टावर. एंड उस बिल्डिंग में, उस टावर में नेहा का हाउस नंबर है 17. नेहा जिस घर में रहती है उसका हाउस नंबर है 17. ठीक है, हर एक जैसे आप भी अपना एड्रेस लिखते हो तो आप अपना हाउस नंबर लिखते हो ना, क्वार्टर नंबर 143/2 पीरकंटी लाइन. ठीक है ना, तो क्वार्टर नंबर अगर नहीं पता होगा, अब नहीं सूर्या टावर्स में तो पहुंच गई, बट इफ शी डज नॉट नो द हाउस नंबर तो किस घर में जाएगी वो? तो हाउस नंबर इज 17. Now this Surya Tower is situated at MG Road. जैसे प्रीवियस लेसन में वेजिटेबल वेंडर की शॉप थी कॉर्नर में MG रोड के, तो इन दिस लेसन नेहा का जो घर है सूर्या टावर्स, दैट इज ऑन MG रोड. वो MG रोड पर है. ठीक है, MG रोड कहां पे? द सिटी इज मेरठ एंड द पिन कोड इज 250001. नाउ यू मे वंडर कि ये नंबर कैसा है. वॉट इज दिस नंबर? दिस नंबर इज नोन एज पिन कोड. ठीक है, इस नंबर को बोलते हैं PIN, पिन कोड.
दिस नंबर इज नोन एज पिन कोड. पिन कोड नंबर होता है लाइक फर्स्ट, जो इसमें फर्स्ट डिजिट है इस नंबर में, फर्स्ट डिजिट दैट इज फॉर द स्टेट. जैसे ये फर्स्ट 2 है तो पूरे यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश में हर सिटी में, हर जगह का पिन कोड 2 से ही स्टार्ट होगा. ठीक है, हर जगह का पिन कोड 2 से ही स्टार्ट होगा. दिस इज द नंबर फॉर द स्टेट. फिर अलग अलग नंबर्स होते हैं, द डिफरेंट नंबर्स. लास्ट 2 डिजिट्स आर फॉर द एरिया. जो जिस सिटी का पिन कोड है उस सिटी में अलग अलग एरियाज होते हैं. अभी पूरी जैसे वाराणसी है तो वाराणसी में सब जगह का पिन कोड सेम नहीं होगा. लाइक जैसे मैं जहां रहती हूँ, मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहां का पिन कोड है 221005. ओके, द एरिया इन विच आई लिव, जहां मैं रहती हूँ. बहुत जगह, बहुत एरिया का पिन कोड होगा 221002. मे बी शायद जहां पे आप रहते हो आपके एरिया का पिन कोड है 221010 प्रोबेबली. मुझे ठीक से नहीं मालूम है बेटा. तो एक सिटी में अलग अलग एरिया का पिन कोड अलग अलग होता है. पिन कोड का बेनिफिट ये होता है कि अगर पिन कोड रहता है तो इट इज वेरी इजी टू सॉर्ट आउट द लेटर्स. अभी जब पोस्ट ऑफिस में लेटर्स जाते हैं तो बहुत सारे लेटर्स होते हैं, देयर थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स. तो उनको पहले अलग अलग किया जाता है, ठीक है, सिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से. तो पिन कोड नंबर रहने से इट इज इजी फॉर द, जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग लेटर्स को अलग अलग करते हैं, अगर पिन कोड रहता है तो उनको लेटर अलग अलग करने में इट इज वेरी इजी. सो पिन कोड होने से एड्रेस आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है. तो नाउ दिस इज हर कंप्लीट एड्रेस कि नेहा जैन उसका नाम है. शी लिव्स इन सूर्या टावर. सूर्या टावर में हाउस नंबर 17 है उसका जो हाउस नंबर है. एंड द सूर्या टावर इज ऑन MG रोड एंड द सिटी इज मेरठ. Like when you write your address, how do you write? Suppose आपने अपना नाम लिखा, उसके बाद say your quarter number is 143/2. Suppose 143/2, how do you write? Pirkanti lines 39 GTC Varanasi Cant. ठीक है. अभी अगर आप अपना हाउस नंबर नहीं लिखोगे तो जीटीसी तो बहुत बड़ा है, पीरकंटी लाइन भी बहुत बड़ी होगी, तो उसमें कहाँ आपका घर खोजते रहेंगे. तो नाउ हाउस नंबर इज देयर 143/2. दैट मीन्स कि हमें पीरकंटी लाइन में 143/2 हाउस नंबर पे जाना है. सो दिस इज योर कंप्लीट एड्रेस. एड्रेस में ऑफकोर्स ऊपर आप अपना नाम लिखोगे, यू विल राइट योर नेम, जिसका जो भी एड्रेस है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है. सो दिस इज नेहास कंप्लीट एड्रेस. आई मीन दिस इज हाउ वी राइट द एड्रेस. नाम लिखा, अपना एड्रेस में हमें क्या क्या लिखना चाहिए, व्हाट ऑल शुड बी देयर. हाउस नंबर होना चाहिए, हमारा नाम तो डेफिनेटली होगा ही. हाउस नंबर शुड बी देयर. ठीक है, हाउस नंबर होना चाहिए. हाउस नंबर के बाद फिर अगर कोई, जिस बिल्डिंग में आप रहते हो उस बिल्डिंग का अगर कोई नाम है तो उसका नाम है, नहीं तो कॉलोनी का नाम है. ठीक है, 39 GTC के अंदर है, ये कॉलोनी का कोई नाम होगा. जैसे आप लिखते हो ना फुलवरिया डिफेंस कॉलोनी, न्यू डिफेंस कॉलोनी फुलवरिया. ठीक है. तो अभी जैसे क्वार्टर का नंबर लिखा, घर का नंबर लिखा, उसके बाद जो कॉलोनी का नाम है, कॉलोनी का नाम हम लिखते हैं, हमारे एरिया का नाम लिखते हैं, एंड देन वी राइट द सिटी पिन कोड. दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन अ एड्रेस, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. किसी को अगर आप अपना एड्रेस देते हो तो इट शुड बी कंप्लीट, कि कोई इजीली वहां पहुंच जाए. सो दिस इज नेहास एड्रेस. नेहा जैन, सूर्या टावर्स, हाउस नंबर 17, MG रोड, मेरठ, UP. ओके. नाउ नेहा हैज गिवन अवनी हर एड्रेस टू. मतलब नेहा ने अपना एड्रेस भी दिया है अवनी को. दिस इज हर एड्रेस, सो दैट अवनी रीचेज हर हाउस इजीली. ओके. नाउ these are just 3 dresses. You can see these are all made with vegetables. मतलब वेजिटेबल्स से नहीं बनाया है. ड्रेस के ऊपर लाइक शर्ट के ऊपर कुछ वेजिटेबल्स की लीव्स लगा करके ऐसे करके बनाया है. हियर ऑल्सो यू कैन सी टोमेटोज यूज करके ड्रेस बनाया है. ओके. दीज आर द 3 dresses. Suggest Avni a nice costume to dress up like a vegetable fairy.
ठीक है, तो इस तरह से नॉट नेसेसरी कि ऐसी ड्रेस बनाओ, कुछ भी ड्रेस बना सकते हैं। मुझे तो ये वाली ड्रेस सबसे अच्छी लग रही है जो फ्रॉक है। ओके, सो दिस इज द लेसन नेहाज बर्थडे इन्विटेशन। ठीक है, इन्विटेशन शुड बी रिटन प्रॉपरली, प्रॉपर मैनर में लिखा होना चाहिए, सो दैट इट इज क्लियर कि इसमें क्या लिखा है। ओके चिल्ड्रन, सो वी हैव डन द रीडिंग पार्ट। नाउ योर होमवर्क इज टू रीड द लेसन प्रॉपरली वंस अगेन। अब फिर से लेटर को, इन्विटेशन को, एड्रेस को पूरा अच्छे से रीड करोगे। ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।